Good morning, student. My name is Mukesh Kumar Verma. I am a physics faculty. I did MSc from Bhagalpur University, and I have been teaching for physics for past 10 years. Hope you will enjoy my physics class. Okay, let's start. Today we are going to learn light for class 10. In this chapter, basically you have to know the idea about mirrors and lenses. These are two optical devices for which you have to study in detail. Let us first know what is light. To see objects around us, we need light. In a dark room, we cannot see the things. It is basically invisible in dark. So while objects surrounding us visible to us, light from a distant sources fall on object, and object reflects light through which we can see what kind of objects we are seeing. So come to the point. Light has dual nature. Light has dual nature. It behaves as a particle, it also behaves as a wave. When it behaves as a particle, we call this section as particle nature of light. And it also behaves as a wave. So when we consider light as a wave, it comes in wave nature of light. Right, we will learn about it in the next slides. First of all, we have to define light. So, definition of light. Light is a source of energy which enables us to see things around us. Light is a source of energy which enables us to see things around us. This is the definition of light. Light is basically a wave. So we can see that light is an electromagnetic wave. In higher classes, you will learn about this in detail. Okay? Now, we will also see the few important things about light. Speed of light in air or vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second, which is also the speed of electromagnetic wave.
right? And speed of light depends on medium through which it travels. It means light has different its speed according to the behavior of medium. I had already told you speed of light in air or vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. This is the maximum speed of light. When light enters any other medium other than air or vacuum, its speed decreases as compared to speed in air. Speed of light in glass medium is 2 into 10 power 8 meter per second. So speed decreases considerably. So on the basis of speed, we classify medium as of two types. So there are two types of medium for light in which it travels. We can write medium or optical medium. Is of two types: rare medium and denser medium. When light travels through a medium and if its speed is greater compared to other medium, it is called a rarer medium. In a simple way, we can say when light enters a rarer medium, its speed increases, whereas if light enters a denser medium, its speed decreases. Air or vacuum is a rarer medium, whereas glass is considered as denser medium as in comparison to air or vacuum. Light do not require any material medium for its propagation. Light do not require any material medium for its propagation. It can propagate through material medium like solid, liquid and gases. It can also propagate through vacuum, whereas sound cannot propagate through vacuum. Sound requires a material medium for its propagation, whereas light is independent of medium for propagation. It only thing is that speed of light changes, right? So rarer medium for light is that where speed is increased, and denser medium for light is that where speed is decreased. It is one time phenomena. For example, light is traveling in air and its speed is 3 into 10 power 8 meter per second. If this is a boundary which separates two medium, above is air and below is glass. This is glass medium and above is air medium. If light is travel in a medium, so one important thing is that light always travel in a straight line in a medium. Suppose these are the air, this is air medium. When light travels through it, it continues to travel in a straight line.
there is no change in path, and speed is also constant. Let it c. C means the speed of light in air. You got my point? The speed of light never changes in a medium. As long as light continues to move in air medium, because medium is not changing here, its speed is constant. Speed is constant. This is constant speed. When light enters a glass medium from air, its speed decreases because glass is denser medium as compared to air. So when its speed decreases, it cannot follow this path. This was its original path of light. This was its original path of light. So when light enters another medium which is denser as compared to previous, light cannot pass through this original path. Why? Because from this point medium is denser, its speed will decrease. When its speed is decreased, it fall down from this line. So light will make cross through this path. From this point, let it be O. AO was the path of light in air medium. This is A dash. Light should follow this path AO A dash, but from point O, medium is changing. Therefore, light cannot follow this path, because to move over this path, the speed of light should be same as it was in air medium. Now, speed is decreased as it is crosses the denser medium, so it will fall down from the original path. अगर मान लो आप कोई चीज ऐसे फेंको सीधा, ये सीधी जा रही है, ये तब तक सीधी जाएगी जब तक कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है. अगर इसकी स्पीड आगे जाते हुए इंक्रीज हो जाएगी तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है. जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है और फिर वो और बढ़ेगी तो वो ऊपर चला गया, फ्लाई हो गया. तो किसी चीज ऐसे चलते हुए अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और कोई चीज़ अगर चल रही है इस तरह और उसकी स्पीड अचानक कम हो जाए तो वो नीचे आ जाएगा. उसी तरह लाइट जब ऐसे आ रही है तो यहाँ तो स्पीड कांस्टेंट था, लेकिन मीडियम में क्रॉस होने के बाद मीडियम डेंसर है, खाली जगह नहीं है, बहुत सारे इसमें ग्लास है, डेंस हो गया ये, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी. कम हो जाने से इसका पाथ डाउन हो जाएगा. डाउन होने का मतलब टेक्निकली नॉलेज में कहेंगे कि अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल बना दूँ तो ये लाइट दूसरे मीडियम डेंसर मीडियम में क्रॉस करने के टाइम इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है. बेंड हुई मतलब स्पीड कम हो गया, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मैं यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था लाइट की स्पीड के बारे में. एयर में क्या होता है और इसका स्पीड चेंज कैसे होता है. जैसे ग्लास में हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो अब ये क्लियर हो गया कि लाइट जब एक मीडियम में चलेगा तो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा और उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी. जैसे ही उसका स्पीड चेंज होगा, अगर डिक्रीज हुआ तो अपने ओरिजिनल पाथ से नीचे की तरफ चला जाएगा.
इस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे, राइट। अब हर मीडियम में लाइट की स्पीड किस फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है, उसको समझने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म आता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। Refractive index of a medium. It is denoted by the symbol mu or n. लाइट में एनसीईआरटी में जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से डिनोट किया गया है, लेकिन इसे हम ग्रीक लेटर म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम के लिए डिफाइन होती है और इसकी वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि लाइट किस फैक्टर पे उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी। मैथमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट in vacuum C divided by the speed of light in medium V. This is n or mu. So we can write mu or n equal to C by V. Refractive index is ratio of speed in vacuum or air divided by speed in medium. So it is ratio of speed only, right? That's why it has no unit. So mu has no unit, it has only a numerical value. Mu has only numerical value, right? Okay, let's come to the next slide. Mu is a relative term. For example, when we write refractive index of air, so this place is for medium for which you are calculating the value of refractive index, and this point is the reference. So let it be air. This is the reference medium. So we can write refractive index of air with respect to air. So what does it mean? It is ratio of speed. So speed in air divided by speed in air. So this value is here and this value is here. This is 3 into 10 power 8 meter per second, and this is also 3 into 10 power 8 meter per second. So it comes out to be 1. So refractive index of air is
1, or refractive index mu air is equal to 1. Refractive index of glass. We are calculating refractive index of glass with respect to air. So what will we write here? Refractive index is equal to C by V. So since mu is equal to C by V, which is so refractive index of glass with respect to air. Here we have to write C air divided by speed in glass. Now we can write it refractive index of glass is equal to 3 into 10 power 8 meter per second divided by speed of light in glass is 2 into 10 power 8 meter per second. So it comes out as 1.5. So refractive index of glass is 1.5 or 3 by 2. Right? So this is the very important formula on which many questions were asked. Out of these 3, you may be given any 2 and you have to find the third one. Similarly, in NCERT it is given that refractive index of water with respect to air is 4 by 3. So what does it mean actually? When you write refractive index of water, it is 4 by 3, you are writing it as speed of light in air divided by speed of light in water. So now compare these two factors. The speed of light in water is equal to 3 by 4 speed of light in air. So when we are given that refractive index of water with respect to air is 4 by 3, it means speed of light in water becomes 3 by 4 times speed of air. 3 by 4 times speed of air means it is decreased. 3 by 4 into 3 into 10 power 8 meter per second means 9 by 4. By 4 per second. When you solve it, it becomes 2.25 into 10 power 8 meter per second. So you see, speed of light in water decreased to 2.25 into 10 power 8 meter per second, whereas the speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second. So whatever be the value of refractive index, for example, refractive index is given as x. So what does it mean? It means refractive index of medium with respect to air is x. It means speed of light
decrease or increase by a factor of x as compared to air, right? Now we will find refractive index. We will study one good example here. Suppose refractive index of glass with respect to air is given as 3/2, and refractive index of glass with respect to water, it is given as 9/4. 9/4. 4/3, sorry. 4/3. This is refractive index of glass with respect to air. This is the refractive index of what glass? No. This is refractive index of water with respect to air. So, water with respect to air. These two values are given. Now we have to find refractive index of glass with respect to water. We have to find refractive index of glass with respect to water. Is what? How we will find it? Means it is basically refractive index of glass with respect to water. We have to find this value, and we are given only these two values. So how we will find? Let us see carefully. Refractive index of glass with respect to water can be written as, नीचे वाली चीज को ऊपर कर दो और ऊपर वाली चीज को नीचे कर दो, ऐसे. ये G ऊपर चला गया, W नीचे आ गया. अब इनके टॉप पॉइंट पे हम एयर लिख देंगे सेम रेफरेंस वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है. ये एक्चुअली में एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे. अभी चूंकि इससे क्वेश्चन आती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे करने से आसानी से बन जाएगा. तो आप इसको ऐसे फार्मूला और ट्रिक समझ लो अभी क्लास 10th में. तो हमें करना क्या था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है. हम क्या करेंगे, इस ग्लास को ऊपर किया और टॉप वाले वाटर को नीचे कर दिया, और दोनों के टॉप पे रेफरेंस वैल्यू एयर ही रख दिया मैंने. ऐसा करेंगे. अब हमें ये दोनों वैल्यू पता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये गिवन है 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये दिया हुआ आपको 4/3. तो सॉल्व करने पे क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8. ये हमारी वैल्यू आ गई. इस पे एक क्वेश्चन आते हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाएगी या कितना बढ़ जाएगा. अब ये आगे चलता ही रहेगा. आगे काफ़ी जब हम आगे पढ़ेंगे कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे फिर ये आएगा.
अभी इंट्रोडक्शन में ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिसको मैंने बताया, और ये चीज़ें अभी इसलिए भी बतानी पड़ी क्योंकि हमें ये बताना था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है एक मीडियम में। अगर लाइट मीडियम क्रॉस करेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और जो भी होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। एक बार घट गया कांस्टेंट है, और फिर वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ मैथमेटिकल नंबर, इट हैज़ नो यूनिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे फर्स्ट स्टार्ट जो मैंने किया था उसमें ये बताया था कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। इसमें आप क्या नेचर था इसका? पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड इज वेव नेचर। जब हम पार्टिकल नेचर कहते हैं इसका मतलब हो गया कि लाइट बिहेविंग एज अ पार्टिकल, लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। और मतलब सिंपल एक पार्टिकल है, जैसे मान लो कि आप एक क्रिकेट का रबर ड्यूस बॉल ले लो, रबर बॉल ले लो, टेनिस बॉल जो होती है, आप उसके थ्रू समझ सकते हो कि लाइट का पार्टिकल नेचर क्या है। जब आप उस बॉल को किसी हाइट से ऐसे सीधा नीचे फेंक दिया, हाथ यहीं पर है, जोर से फेंक दिया इसे एक बार सीधा, तो बॉल नीचे ज़मीन पे गया, टकरा कर वापस आपके पास आ गया। तो लाइट भी इसी तरह बिहेव करती है कि अगर उसे कोई एक पॉलिश सरफेस मिला, पॉलिश सरफेस ज़रूरी है लाइट को वापस आने के लिए, मतलब वापस आना मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट अगर नॉर्मली आई इस तरह, एक सिंगल एरो से मैंने इसको बनाया, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे है, लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस शाइनी सरफेस और पॉलिश सरफेस, दिस इज अ पॉलिश और शाइनी सरफेस। तो लाइट एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रही है, मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। मान लो वो टेनिस बॉल एक पार्टिकल है और ये ग्राउंड है, तो जब बॉल सीधा आएगा तो सीधा ही लौट जाएगा। ये डबल एरो मैंने बोला वो बाउंस बैक हो गया, सीधा आपके पास हाथ में आ गया। तो अब लाइट को देखो, लाइट इस तरह से बिहेव कर रही है नहीं। अगर लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे नॉर्मली आएगी तो वो नॉर्मली ही लौट जाएगी, ठीक है, क्योंकि सरफेस पॉलिश है। अब अगर लाइट, मान लीजिए बॉल को मैंने ऐसे फेंका तिरछा, उसी टेनिस बॉल को ऐसे तिरछा फेंका, यहाँ से फेंका, तो वो बॉल हमारे हाथ में नहीं आएगा, फिर वो वहाँ टकराने के बाद उधर चली जाती है। आपने देखा होगा इसको डेली लाइफ में, ऐसे फेंका तो वो उधर चली जाएगी, हमारे हाथ में नहीं आएगी। तो लाइट भी इसी तरह बिहेव करेगी, जैसे आया ये सरफेस पे यूं, तो यहाँ के बाद ये ऐसे लौट जाएगा। पार्टिकल नेचर है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स पार्टिकल नेचर में आपको पहले क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड आपको पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या है? वो भी पार्टिकल नेचर है। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, वाटर सरफेस है। मान लो कि आपके पास एक बड़ा सा टैंक है, ग्लास उसकी फिटिंग है, ये पूरा ग्लास वाल है, ग्लास वाल है, काफ़ी बड़ा ग्लास टैंक है ये। दिस इज ग्लास टैंक और इसमें वाटर भरा पड़ा है, पूरा वाटर भरा पड़ा है।
आप इसे देख सकते हैं। ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके आई लेवल पे ऐसे पड़ा हुआ बड़ा सा ग्लास, ऊपर से उस छत से नीचे ऐसे आपका एक ग्लास टैंक है जिसमें वाटर भरी पड़ी है। अब आपका कोई फ्रेंड ऊपर गया, छत पे ओपन है वो, आप नीचे से देखोगे बिहेवियर उसकी, तो पहले क्या करो, बॉल को आप इधर से गिराओ, टैंक में मत गिराओ, बगल से ऐसे गिराओ, ये बॉल सीधा आएगा। आप उसको क्या देखना है, उसमें उसकी स्पीड कितनी है, एक अनुमान लगा लो कि हाँ इतनी स्पीड से गिरा। फिर आप कहो उस फ्रेंड को कि अब वो वाटर में डाले, तो जब ये बॉल सीधा वाटर पे आएगा तो टकराने के बाद आप देखोगे कि उसकी स्पीड जो है कम हो गई। एक्चुअली देखा जाए तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो उस चीज़ को हम फ्लूइड चैप्टर में भी पढ़ेंगे बाद में, या आपने पढ़ रखा होगा 9th में। लेकिन जो अगर हम लाइट के बारे में देख रहे हैं उसमें यह है कि बॉल जब एयर में आ रहा है तो उसकी स्पीड कुछ है, बॉल की स्पीड, और जैसे ही वो वाटर के अंदर चला जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, लेकिन पाथ सीधी ही रहेगी, पाथ में चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली आया है। अब ये क्या स्पीड में चेंज होना, मैंने पहले बताया था आपको, क्या है वो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। फिर अब आप इसको थोड़ा तिरछा फेंकिए बॉल को, बॉल ऐसे किसी स्पीड से आ रही है, जैसे पानी के अंदर जाएगा तो वो इस पाथ पे नहीं चलेगा, थोड़ा वो अंदर मुड़ जाएगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, when light travels from one rare medium to denser medium, it bends from the original path. This is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे नॉर्मल की तरफ मुड़ सकती है, अगर वो जाने अंदर दूसरा मीडियम जिधर मुड़ रही है वो डेंसर है। तो हम कैसे पता करते हैं कि ये मुड़ गया, दिख गया? अब एक एक्सपेरिमेंट है आपका पेंसिल वाला, कि एक पेंसिल है उसको आपने ऐसे डाल दिया, मान लो ये पेंसिल है, तो अगर ये वाटर में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, वाटर में आपको कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। यहां से यहां तक पेंसिल ही, आप पेंसिल तो मुड़ा नहीं है, निकालोगे तो पेंसिल तो वैसे ही पड़ी हुई सीधा, लेकिन पानी में जाने के बाद वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो दिखना मतलब क्या है, लाइट पेंसिल के हर पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक जानी है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ मीडियम इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट को सीधी लाइन में ही चलनी है। अब जहाँ तक मीडियम है वहाँ तक तो वो सीधा चला, मीडियम चेंज हुआ, लाइट की स्पीड कम हो गई तो वो बेंड हो गया। तो बेंड हो जाने से हमें पेंसिल बेंड होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट की स्पीड ही कम हो गई। ठीक है। और अगर कोई ऐसा मीडियम होता जहाँ पर कि ये एयर से भी रेयर हो जाए तो पेंसिल हमें इस तरह दिखाई देगी, ऐसे तिरछी, मतलब लाइट की स्पीड बढ़ गई। तो हम देखते हैं लाइट में पेंसिल यहाँ नहीं मुड़ा है, लाइट मुड़ी है। और वाटर में पेंसिल को देख रहे हैं तो लाइट जिस पाथ पे चलेगी वही हमें दिखाई देगा। तो यही रिफ्रैक्शन है। तो ये सब क्या है आपका पार्टिकल नेचर है। तो लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो सकती है, राइट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये तो दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसको सेपरेटली हमें पढ़ना है डिटेल में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पार्टिकल नेचर के लिए, इन दोनों से भी पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो स्टार्टिंग से एक ही बात बोली जा रही थी कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में इन अ मीडियम। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम इज कॉल्ड, वही उसी का ये टेक्निकल नेम है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
तो हम ये 3 चीज़ पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर में। सबसे पहले हमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन पढ़ना है, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में आपने क्लास 6 या 8 में पढ़ा होगा। देखिए, आपकी जो कोर्स करिकुलम है लाइट की, ये स्टार्ट हो जाती है 6 क्लास से। 6 लाइट के बारे में आप 6 में पढ़ते हैं, फिर 8th में पढ़ते हैं, फिर 10th में पढ़ते हैं, और उसके बाद ये सारे क्या है ना, एलिमेंट्रीज आइडिया हैं, बेसिक आइडियाज़ है, और इन्हीं को लेकर के ये प्री रिक्विजिट्स हो जाती है 12th में फाइनली लाइट को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर 11th में लाइट नहीं पढ़नी है, 9th में लाइट नहीं पढ़ना है, लेकिन 12th में लाइट को ब्रॉड वे में पढ़ना है। ब्रॉड वे में लाइट 12th में 2 डिवीज़न में हो जाता है। एक आपका हो जाता है रे ऑप्टिक्स, इसमें ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं, और भी चीज़ें आ जाती हैं डिटेल में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, मिराज, प्रिज्म, वो सब हमें पढ़ना है। और वेव नेचर को हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। इन दोनों के बारे में डिटेल में आप में से कुछ स्टूडेंट और डिटेल में उनको पता होगा, या फिर वो जानना चाहते होंगे कि ये क्या है वो क्या है, तो वो 12th में जाकर के आपको डिटेल में पढ़ना होता है। या आपको अगर इच्छा करती हो कि नहीं मुझे अभी जानना है, तो आप 12th के NCERT को पढ़ लें, आपको समझ में आ सकता है। अदरवाइज़ अभी तो ये 10th की क्लास है, तो हमें 10th ही पढ़ाना है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया था, लाइट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर विजिबल है, हमें दिखता है कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, उसके ये सारे एग्जांपल्स हैं, और इसके और भी एग्जांपल्स, ऐसा टॉपिक्स होंगे जिसको आप डिटेल में इंडिविजुअल पढ़ने के टाइम देखेंगे। वेव नेचर में जनरली हमें पढ़ना होता है, आपके 10th में सिलेबस नहीं है वेव नेचर, आपको नहीं पढ़ना, लेकिन एक बेसिक आइडियाज़ है, NCERT में भी है, वो इंट्रोडक्शन में है। इंटरफेरेंस डिटेल में नहीं पढ़ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब आपको भी पढ़ना ही नहीं है वेव नेचर, फिर भी मैं बता देता हूँ। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन सब की डिटेल आपको 12th में पढ़नी है। और वेव नेचर ये होता है जिसको हम वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लाइट। ओके, तो इंटरफेरेंस लाइट एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिफ्रैक्शन, इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ना है 12th में। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि लाइट मान लीजिए चल रही है और इसके पास में कोई बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट आ जाए, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट, मान लो उसको हम स्लिट कह सकते हैं, जैसे ब्लेड होता है सेविंग ब्लेड, उसके दोनों शार्प एज को आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको उसमें गैप नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें स्पेस है, तो उससे जब लाइट क्रॉस करेगी तो वो डिफ्रैक्ट कर सकती है। इसी फिनोमेना को हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट को किसी एक प्लेन में कन्फाइन कर देना। जैसे अभी यहाँ पे लाइट चल रही थी, पोलराइज लाइट नहीं है, ये क्या है आपका डिफ्यूज लाइट है, वो हर जगह फैल गया है। और पोलराइज लाइट हर जगह नहीं फैलती, उसको आप किसी एक प्लेन में कन्फाइड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक लेज़र लाइट है, यहाँ पे आपने क्लिक किया और दीवार पे सीधा सिर्फ रेड डॉट आ रहा है, मतलब लाइट को आपने पोलराइज कर दिया, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको बाद में पढ़ने हैं। ओके,
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मैंने बताया था ये है क्या। इट इज़ सिंपली, ये आपको ये बताता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम। Light travels in a straight line in a medium। और इससे होता क्या है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि इट कास्ट शैडो, इट कास्ट शैडोज, इससे छाया बनती है। कैसे? जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक लाइट सोर्स ले लूँ, ये कैंडल है, इससे लाइट निकल रही है, तो जो ऑर्डिनरी लाइट होगी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। डिफ्यूज़ होगी तो उसको हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे पॉइंट इससे लाइट ऐसे निकल रही है, हर डायरेक्शन में निकल रही है, ये डिफ्यूज़ हो गया। एरो से डिनोट किया हर एक आपका बीम ऑफ लाइट है। तो इसी तरह से मान लो कि कुछ बीम ऑफ लाइट ऐसे निकली, यूँ एक सीधी जा रही है, बाकी सारे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो आपके रूम में तो है ही लाइट। अभी लाइट चल रही है, ये चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड से। मीडियम हमने मान लिया एयर है। अब मान लीजिए मैं इसके पाथ में एक कार्डबोर्ड रख दिया, ब्लैक कार्डबोर्ड, ब्लैक पेपर से रखा हुआ है, तो हमें इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमें लाइट दिखाई नहीं देगी, नो लाइट। और अगर इसका लाइट के कंपेयर में साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है, बहुत छोटा भी नहीं है, इस तरह का है कि इसका साइड बन से छाया बन, जैसे आप चलते हैं रोड पे तो आपका शैडो बनता है, लेकिन किसी बिल्डिंग का कंप्लीट शैडो नहीं बनेगा। तो हमें लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में अगर बहुत स्मॉल लेंगे तो फिर वो ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन नहीं होगा, वो डिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो थोड़ा बड़ा लेते हैं, अब इतना भी बड़ा नहीं कि शैडो भी ना बने। तो मैंने एक लिया, अब क्या होगा, लाइट आ गई, अब इस तरफ ग्राउंड पे इसका शैडो बन सकता है, मतलब लाइट पूरी आपकी इसके ऊपर आ रही है, एक तरह से यूँ पूरे फेस पे आएगी, तो इस तरफ हमें इसका शैडो मिलेगा। तो लाइट तो अब मिल नहीं रही है, लेकिन मुझे शैडो मिल रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इसका होल कर दिया, तो हमें क्या, और इस तरफ एक स्क्रीन ले लेते हैं, तो क्या दिखने को मिलेगा मुझे, इतने बीम में से कुछ बीम इस होल से पास कर जाएगी और फिर वो सीधी लाइन में ही चलेगी, और फिर मुझे इतनी दूर लाइट मिलेगा। अब मान लो मैंने एक और लिया कार्डबोर्ड, और यहाँ पर उसी शेप का उतना ही साइज़ का होल है, तो सारे लाइट फिर इसी होल से क्रॉस कर जाएंगे और मुझे लाइट मिलता रहेगा। मतलब आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन लाइट को पास होने के लिए जो स्पेस है वो सेम हाइट पे, सेम प्लेस पर है। अब इसको थोड़ा ऊपर या नीचे कर दिया जाए, जैसे कि यूँ कर दिया मैंने, अब होल यहाँ पे आ गया, नीचे कर दें चाहे ऊपर कर दें, तो फिर मुझे लाइट नहीं मिलेगी। ये क्या शो कर रहा है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर अगर हम इसको ऊपर कर दें, इसी लेवल पे आए, तो फिर लाइट मिलता है। सो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इट से हमें क्या पता चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट कास्ट शैडो।
ठीक है, इसके बारे में आपने डिटेल क्लास 6 में भी पढ़ा है या 10th में पढ़ा होगा, राइट। इसे नोट करें 2 मिनट। Now let us now start reflection of light. Reflection of light. The bouncing back of light from a shiny or polished or metal surface, shiny metal surface, is called reflection of light. हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो मैंने एक सरफेस लिया, इसके एक तरफ पॉलिश कर दिया, तो कोई मिरर हो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो कर सकता है। तो मान लीजिए ये आपकी कोई शाइनिंग सरफेस है, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसका नाम दे देते हैं एक्स वाई। मैंने आपको बताया था लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज particle nature of light, means it behaves as a particle. So when a light falls on this reflecting surface, it gets reflected normally. When a light falls normally, it gets reflected normally. So single arrow shows this point is O. Single arrow coming, single arrow represent incident light. So AO is incident light or incident ray. So since it is falling normally, it bounce back reflectively. It bounce back or reflect normally. Double arrow, so OA is reflected ray. अब क्या है, मीडियम आपका वही है, मीडियम चेंज हुआ नहीं। मान लो ये एयर मीडियम ही है, तो एयर मीडियम में पहले लाइट आई थी और नॉर्मली लौट गई, तो रिफ्लेक्शन में आपका स्पीड चेंज नहीं होगा। AO OA दोनों की स्पीड चेंज नहीं होगी। टेक्निकली हम AO को कहेंगे इंसिडेंट रे, OA को कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और आपका बॉल भी इसी तरह आएगा। अगर मान लो ये हार्ड सरफेस है, बॉल को नॉर्मली गिराएं तो वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बाउंसिंग बैक फ्रॉम ए शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब कोई दूसरा रे लेते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे AO ना। अब ये नॉर्मली नहीं है, वो यहाँ पर आया, तो ये जो O पॉइंट है ये कहलाएगा जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। O इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, तो अगर बॉल इस तरह से आई होती तो वो इधर जाएगी। तो लाइट में एक रूल है कि कितना जाएगी, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन एक्चुअली में रे ही है, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल। नॉर्मल इज व्हाट, NO
is normal at point of incidence O. तो ये एक्चुअली में ये इस AO की तरह आप समझ सकते हो कि ये नॉर्मल भी एक इंसिडेंट रे है जो ऐसे आ रही है और ऐसे लौट रही है, राइट। तो एक रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे हो ही सकता है नॉर्मल के अलोंग, और फिर अगर मैंने एक ऐसा इंसिडेंट रे लिया जो O पे आ रहा है, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए आ रहा है, मान लो थीटा एंगल्स पे ये बना रहा है, तो अब बॉल अगर ऐसे आई होती तो ऐसे जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट्स ऐसा देखा गया है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो इतने एंगल पर ही यूँ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लेट इट बी बी। सो ओ बी हियर इज रिफ्लेक्टेड रे, OB here is reflected ray, and from experiment it is seen here that it is again the same angle theta एंगल पे आएगा, थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम है। अब टेक्निकल नेम यहाँ पर क्या आ रहा है कि एंगल AON इज कॉल्ड आई, ये थीटा ही है आपका, एंगल AON इज थीटा एंड इट इज कॉल्ड एज आई। आई मीन्स angle of incidence. This is angle of incidence, and this angle NOB is R. R stands for angle of reflection. Angle NOB equals R, angle of reflection. And as I told you that these two angles are same, so angle I is equal to angle R. This is laws of reflection. So bouncing back of light from a shiny or metal surface is called as reflection of light. There are some rules which is known as law of reflection of light. According to this, angle of incidence equals angle of reflection, I equals to R, and second law is incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane, right? This is reflection of light. Now we will learn in next class. Thank you.